when I started coding on blockchain, I started understanding the technology. I believe that this is a new asset class which is emerging. How does one build that confidence in an asset like this? You always start small. आपको समझ आने लगेगा कि चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, उसकी वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन हो रही है. Crypto is a way to solve this, to make money equal for all. What does it mean? आपके पास पैसा है बट आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है. हमने ये सोचा था कि यार वी विल प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर पीपल टू इन्वेस्ट विद जस्ट ₹100. Timing the market or time in the market? I don't think anybody can time the market. Welcome to Best Interest, a show where we explore how people make real-life money decisions shaped by experience, not by gyan or advice. My name is Aditya Mattu, and today we are joined by Vimal Sagar Tiwari, co-founder of CoinSwitch and Lemon, someone who has built in one of the most volatile and fast-evolving spaces in finance. Vimal, it's an absolute pleasure to have you with us. Thank you for inviting me. The idea of this conversation is to see how you look at money and how that outlook has changed and evolved across the years, and maybe what we can learn from your vantage point, from your viewpoint, considering the work that you do at your organizations. Surely you must have some interesting learnings from that too. Sabse pehle, we'll go back to the beginning. I want to understand, where did you come from and what was the upbringing like, and उस upbringing में what was the role that money played? I grown up in Balia. It is a small district in Uttar Pradesh, eastern side of Uttar Pradesh, around Bihar borders. I come from a lower middle class family. My mom was a homemaker. My dad was a journalist. We are two siblings, me and my elder brother. From resource wise, there was no abundance of resources, but I come from a family where like we always prioritize values. There was always an understanding within a family that okay, nothing in life you will get it easily. You always have to do hard work and you have to earn it. If you talk about from schooling, my schooling was done in Balia. After that I moved to Kota. It was like a tradition that everybody who want to do engineering, they have to go to Kota first. So I was there for a year, and after that I did my graduation from JP Institute of Information Technology, Noida, in computer science and engineering. From Balia to Kota to Noida now, the idea of money, as you said, was कि इतना है, इससे अगर जो भी extra चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. Is that something that has like even worked for you even till now, or I'm just curious like how has that evolved from then to now? I think upbringing जैसे आपकी होती है ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है आपकी पूरे लाइफस्टाइल में and throughout the journey. It's not if you have a modest life in the beginning and you suddenly you get money and you start living a lavish lifestyle. I think ऐसा होता नहीं है. I'll tell you my story how started. There was always in the beginning itself, like I tell that there were not a lot of money. पैसा उतना ही था जिससे घर का काम चल जाता था. And I'll tell you that okay, when I was taking my admission for my coaching, we did not have money that time as well. Then one of my auntie in my neighbor, she actually broke her fixed deposit and gave money for that. Here we show that how we give trust and value to the relationship also, like somehow how can somebody else break their life saving for someone else, someone else's kid. And this also shows that there was not too much of money. This is the thing. So I always believe that okay, your background always defines your whole life. तो ये जो values आपने कहे, so उसमें like पैसे के आसपास क्या क्या values थे? एक तो हो गया कि पैसा मेहनत से मिलेगा. दूसरा, I think you have to earn that, मतलब अगर पैसा मिला भी है, you'll have to repay that with more work and more hard work. और क्या values थे? I'm just curious. यही था कि you have to live your life honestly, and हमारे यहाँ जितनी भी jobs होती हैं, mostly लोग salaried people, fixed amount of money you have to get every month, right? और वहाँ पे एक और पैसे को लेके एक और लाइफ थी, क्या जितना पैसा है उतने में चलाना है. तो एक पैसा openly discuss होता था? नहीं, कभी नहीं होता था. And it's not only in my house. I think पूरी सोसाइटी में मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई ये बात करता है कि about how much money he is earning or where he is investing. So I think ये हमारा एक और CoinSwitch जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये सोचा था कि यार we will provide an option to for people to invest with just ₹100, because people from like tier 2, tier 3 cities as well, they all have aspiration to increase their wealth, but nobody in the family even talk about it. तो हमने ये ऑप्शन दिया, और जो भी प्लेटफॉर्म उस समय अवेलेबल थे वहाँ पे मतलब आप इन्वेस्ट तो कर सकते थे. इट रिक्वायर लॉट ऑफ लर्निंग एंड इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी एज वेल. तो हमने बोला यार कि अगर आपको CoinSwitch पे अगर इन्वेस्ट करना है तो आप ₹100 से करिए. आप अपनी स्किल बढ़ाइए. अगर आपको लगता है कि आपका
इन्वेस्टमेंट अच्छा करे तो यू कैन इंक्रीज योर स्टेक मोर. सो वो जो फ्रिक्शन था कि क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ फाइनेंसेस कभी डिस्कस ही नहीं होते थे, तो और सब लोग अपने काम में बिजी होते थे, सबको लगता था पैसा तो बढ़ना चाहिए. तो अगर हम कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो हम उनके लिए क्या ईज कर सकते, तो हम ये ईज कर सकते हैं कि एंट्री बैरियर कम कर दें कि यार आप आइए, एक बार एक्सपेरिमेंट करिए, इन्वेस्ट करिए, मॉनिटर करिए, और आपको लगता है कि आप अच्छा सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आपने जैसे कहा कि मम्मी होम मेकर थी, पापा काम करते थे. अभी पीछे अगर मुड़ के देखें, इज देयर एनीथिंग दैट यू थिंक योर पेरेंट्स डिड राइट व्हेन इट केम टू हाउ दे अप्रोच मनी, और इज देयर समथिंग जो आप कहेंगे कि यार हाँ यहाँ पे मे बी दे कैड हैव इम्प्रूव्ड? शायद से उस समय उन्हें नहीं पता था, बिकॉज ऑफ कोर्स हम, जैसा आपने कहा कि वी ओनली नो व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, बट अभी आपको देख के लगता है कि यार पेरेंट्स हाँ ये चीज सही की थी, ये चीज में कुछ अलग कर सकते थे. आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. वाई आई एम टेलिंग, बिकॉज घर में ना पूरा एक ही माहौल था कि यार बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी है. अब उसके लिए जो आपकी लाइफ सेविंग थी सारी उसी में जाती थी, जो भी पैसे थे. और आपको पता है कि हम जिस फैमिली से आते हैं वहाँ पे लोग अपनी डेली जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं तरजीह देते हैं, बिकॉज बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए जी. वहाँ पे आई थिंक द सिंगल मोटो था फैमिली का कि यार बच्चे को पढ़ाने के लिए जो चाहिए होगा वो करेंगे, और उसके बाद आई थिंक ही शुड बी एबल अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे. यस यस. Correct me if I'm wrong, came around 2007 when you went to 2006-7, yes. 2006-7. And ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि यू वर अ कोडर इन बैक देन, काफ़ी टिंकर करते थे, काफ़ी अर्ली. आई थिंक आपका सबसे पहला वेंचर भी कॉलेज में ही हुआ था स्टार्ट. हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड दिस बॉय फ्रॉम बलिया थिंक यार नहीं यहाँ पे ही कंप्यूटर में ही कुछ करना है, एंड हाउ डिड दैट फर्स्ट वेंचर कम अबाउट? सो देयर इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. ड्यूरिंग माय कोटा डेज आई बिकम गुड इन केमिस्ट्री. मुझे केमिस्ट्री अच्छी चमकती थी कि यार समझ आ रहा था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के चक्कर में. और ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छा समझ आता था मुझे. तो मैंने ट्राई किया कि यार ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि आई कैन अप्लाई इन कोटा इटसेल्फ एंड आई कैन बिकम अ लेक्चरर देयर ओनली. तो ड्यूरिंग माई लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन कोटा एंड आई गॉट ऑन द सेम कोचिंग वेयर आई हैव स्टडीड. सो वहाँ पे मुझे लेक्चरर का जॉब मिल गया, और था कि यार चलो ठीक है यहाँ कर लेते हैं. कॉलेज में जब प्लेसमेंट हुई थी तो मुझे एक्सेंचर में जॉब मिली थी. तो नाउ आफ्टर लिविंग द कॉलेज आई हैड टू ऑप्शंस. वन इज गो बिकम अ केमिस्ट्री लेक्चरर इन कोटा और ज्वाइन एक्सेंचर एज ए इंजीनियर. सो अब ये था मेरा इंक्लाइनेशन, वैसे भी कोटा में था, बिकॉज मुझे समझ आता था और मुझे पता था कि यहाँ तो मैं कर लूंगा आराम से. बट व्हेन आई स्पोक टू माय ब्रदर ही वाज वेरी एडमेंट कि तुम्हें कोटा नहीं जाना चाहिए. व्हाई? बिकॉज ही सेड कि यार टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एंड इफ यू डू वेल हियर you can have a good career in technology as an engineer, as a developer. वो मुझे बात अच्छी लगी, और at least I had an option as well कि चलो ठीक है, एक ऑप्शन से पहले दो ऑप्शन. I came to Bombay, joined Accenture, and this is how the journey for technology started. How was Bombay initial reaction of being in Mumbai back then? Coming from Noida for that matter, बलिया तो छोड़ी दे, नोएडा से मुंबई भी एक अलग दुनिया है. How was that change for you? How did you adapt to that? मुंबई वॉज लाइक अ ड्रीम सिटी फॉर एवरीवन. और मैं तो एक्चुअली पहली बार बाहर निकला था, बिकॉज इन कॉलेज एज वेल आई वॉज इन हॉस्टल. तो दिस वॉज माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट लिविंग माई ओन लाइफ ऑन माई ओन. घर के खर्चे चलाने, all of those things. खुद से चलाने, बिकॉज वहाँ तो क्या आपने फीस दे दिया तो हो गया. और वहाँ पहली बार मुझे पता चला कि बहुत पैसे चाहिए होते हैं, आपको एडवांस देना होता है, ये सारी चीज़ें. उतने पैसे तो एक्चुअली नहीं थे. तो दो स्टिल आई गॉट सेटल देयर. बट एक एक्सपेरिमेंट मैंने अपने साथ किया कि यार आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल डे विद जस्ट 100 रुपीज़. ये मैंने किया कि यार जब तक मैं बॉम्बे में रहूंगा आई विल नॉट स्पेंड मोर देन 100 रुपीज ऑन माई सेल्फ, एंड दैट इंक्लूड्स माई फूड, माई कम्यूट, ऑल माई डेली एक्सपेंसेस. आई वॉज देयर फॉर 2 months. आई ट्रांसफर टू बैंगलोर आफ्टर दैट. सो इन द 2 months आई वॉज एबल टू लिव माई लाइफ ऑन ऑलमोस्ट 95 रुपीज, 98 रुपीज तक. 100 कभी टच नहीं हुआ था उसमें. और वहाँ पे पहले नोकिया के फोन होते थे, तो आई यूज्ड टू ट्रैक माई एक्सपेंसेस, सेंड SMS टू माई सेल्फ कि यार चलो आज का ये आया है, आज का इतना हुआ है, ऐसे. तो आई यूज्ड टू ट्रैक एवरी डे, एंड इट गेव मी good learning about life, about how to manage finances, and it gave me confidence as well कि यार difficult situation भी अगर financially कभी होती है तो I should be able to survive. 2011 के पास Accenture हुआ, उसके बाद Zynga I believe next step. वो कहाँ पे था? वो भी Zynga in Bangalore itself. Yeah. उसके बाद comes the step के जहाँ पे, correct me if I'm wrong, उसके बाद you started your own company.
तो अभी तक जो हम 2011 में बॉम्बे में हम देख रहे हैं कि भाई प्लान करके रखो, थिंग्स कैन गो, वी कांट प्रेडिक्ट हाउ थिंग्स विल हैपन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। वही विमल 2017 में टेक्स जंप, गैम्बल कह सकते हैं, मे बी यू हैड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, बट आई एम प्रीटी श्योर 2017 में अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में घुसेंगे, पीपल मस्ट बी थिंकिंग भाई सोच के कर रहा है ना, हाउ डिड दैट स्विच हैपन कि दिस इज अ रिस्क दैट आई वांट टू टेक, दिस इज अ opportunity that I see and this is not a gamble for me? After Accenture, I was in Zynga. I was heading their technology for one of their very core feature for Formula 2. And during that time, I got to know about Bitcoin and I read their white paper. I understood the technology and all those things. और क्रिप्टो में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यार अगर आपको कोड लिखने आता है ना तो आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। एंड आई हैड आशीष एंड गोविंद उनके साथ, उनको मैं कॉलेज के डेज से जानता हूँ, हमने बहुत सारे हैकाथॉन्स भी साथ में करे हैं और इंडिया में जितने हैकाथॉन्स बड़े वाले हुए हैं वो सारे हमने साथ में जीते भी हैं। तो एक आपको कॉन्फिडेंस होता है अपने टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, ये भरोसा मुझे था कि यार हम लोग साथ में कुछ ना कुछ नेविगेट कर लेंगे। जब हमने कॉइनस्विच स्टार्ट किया तो भी ऑब्वियसली चैलेंजेस तो थे ही, और ऐसा भी नहीं था कि उस समय आई थिंक बहुत ज़्यादा पैसे थे और ये था, लेकिन अपने ऊपर भरोसा था कि यार चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ऑब्वियसली, नहीं हुआ देन ऑल्सो अब स्किल तो आती है, प्रोग्राम लिखने आता है, डेवलपर तो जो जॉब मैं आज के दिन कर रहा हूँ वो तो मुझे एनीवेज मिल जाएगी। लेकिन हाँ ये था कि आपको खुद के ऊपर एक ट्रस्ट था, कन्विक्शन होना चाहिए कि यार आई शुड बी एबल टू डील विद दिस सिचुएशन। You have said it many times that one of your main missions before we get into CoinSwitch and all of those is to make money equal for all. What does it mean, money equal for all? Is it access to money? Is it the value of that money? इसका मतलब क्या है? Where does it come from? Making money equal for all का मतलब ये होता है कि everybody who is having the same amount of money, but they will not have the similar opportunity with that money, right? I'll give you an example. Please. Right? Let's say suppose somebody in Bangalore having 10,000 rupees and somebody, let's say in remote area of, let's say my hometown or maybe in Bihar or any tier 2, 3 cities having a similar amount of money. जी. आपको पता है कि दोनों के पास सिमिलर अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी शायद सिमिलर नहीं होगी बिकॉज जो बैंगलोर में है उसके पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है। Correct. उसे पता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पे उसको फाइनेंशियल प्लानिंग लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे उसको ज्ञान मिल जाएगा, बहुत सारी यहाँ पे 10 तरह की कंपनियां भी होंगी जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू कर सकते हैं इन्वेस्ट। बट जो छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके पास भी अगर पैसा होता है बट उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको ये नहीं पता होता कि उस पैसे के साथ वो क्या कर सकते हैं, हाउ दे कैन इंक्रीज वेल्थ बाई द मनी दे आर ऑलरेडी हैविंग। इस गैप को हम फिल करना चाहते हैं बाई मेकिंग मनी इक्वल फॉर ऑल। कि यार आपके पास पैसा है बट आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी हम अपने प्लेटफॉर्म और अपनी कोशिशों के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे और उस गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे। इसका पहला स्टेप दैट यू टुक, पहला कदम था थ्रू क्रिप्टो। यस। 2017 में आई डोंट नो क्रिप्टो का कितना क्रेज था, मतलब मैं तो ज्यादा जानता नहीं था, बट why did you think at that time that crypto is a way to solve this, to make money equal for all? I mean, traditional finance तो चल ही रहा था सालों से. Why did you think crypto was a opportunity to solve this problem? When my crypto journey started, when I went through, I read about Bitcoin. When I started coding on blockchain, I started understanding the technology. I believed that this is a new asset class which is emerging. मैं बाकी लोगों को जिनको follow करता था, who were believer in Bitcoin, somehow I got convinced कि यार over the years में this will also get established as one of the important asset class, like how we are having gold, how we are having stock market, mutual fund, real estate, right? तो और हमें ये भी पता होता है कि जो अर्ली इंट्रेंट होते हैं, जो अर्ली बिलीवर्स होते हैं, ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजी जल्दी इवॉल्व करती है तो उनको फायदा मिलता है। देन व्हाई कांट वी स्टार्ट विद दिस? तो हमने ये सोच के उसको स्टार्ट किया और हमने कहा कि एक बार इस पे काम करके देखते हैं। थोड़ी मुश्किल था डिसीजन की आराम से आ गया कि लाइक वो कन्विक्शन बहुत आसान था? आई थिंक वो कन्विक्शन आसान था बिकॉज ऑफ आवर बैकग्राउंड, बिकॉज वी कम फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। जी, हमें उसको समझने में समय नहीं लगा। इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि इफ यू अंडरस्टैंड कोड एंड you know the blockchain part, how it works, so it was easy for you to see it becoming what it has become or what it will become. For those who don't understand this asset class, we're talking about money, and money of course has all of these shapes and forms. Gold we can see, real estate we can understand, FD इतने साल से चल रहा है कि we have an idea, mutual funds भी अभी आ गए.
क्रिप्टो लाइक इट्स अ वेरी ओपेक थिंग, आप समझने के लिए आपको यू विल हैव टू गो इनसाइड इट। तो अब जब कॉइन स्विच पे आप कह रहे हैं कि 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। हाउ डज वन बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन एन एसेट लाइक दिस? हाउ व्हाट रूट डज वन टेक हु इज नॉट टेक्नोलॉजिकली गिफ्टेड से एज यू आर, और डज नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन सिट एंड लर्न से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? उनके लिए कैसे, how do they learn about this bit? There are two things. One thing in general, I can say that, okay, you can see in crypto it started earlier, it was the retail adoption. मतलब हम जैसे लोग इन्वेस्ट करते थे, and now in an era then you see that almost most of the countries in the world are on the path of regulation. One or other way regulate कर रहे हैं। आप दुबई में देख लीजिए वारा है, यूएस में तो जीनियस एक्ट लास्ट ईयर आया था, इस समय क्लैरिटी एक्ट आने की बात हो रही है, बिकॉज वो चाह रहे हैं सेटल क्लास को रेगुलेट करना, और गवर्नमेंट का ध्यान गया है, गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहता है, बिकॉज सबको एक पोटेंशियल दिखता है, और नाउ गवर्नमेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए उसमें गार्ड रेल्स बना रही है। बिल्कुल, जो अभी पहले नहीं था, पहले सबने इग्नोर किया था, लोग वेट कर रहे थे, बट अब मुझे लगता है कि वो एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे सारी सरकारों का ध्यान गया है, सारी सरकारों का ध्यान गया, और सब लोग उसको रेगुलेटरी दायरे में लाना चाहते हैं। इंडिया में भी हुआ है, वी आर एज अ रजिस्टर्ड वैस्प, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, अंडर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो ये हर कंट्री में हो रहा है, आप एक चीज़ ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन, बिकॉज जो एक्चुअल जो वैल्यू आती है किसी भी एसेट क्लास में, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन से आती है कि इंस्टीट्यूशंस कैसा कर रहे हैं। तो आज के दिन में देखिए इंस्टीट्यूशंस का भी एडॉप्शन बढ़ा है। पहला वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा नाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस आर putting their assets on blockchain, now they are tokenizing their assets on blockchain. दूसरा एस्पेक्ट जो मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि यार अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है ना, यू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। आप थोड़ा पैसा डालिए, थोड़े दिन मॉनिटर करिए, क्योंकि आपका पैसा जब रोज ऐप में ऊपर नीचे जाएगा ना, तो आपको दिखेगा कि यार क्यों हो रहा है, तब आप ट्रैक करेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अच्छा, आज जो मैंने 200 रुपये डाले थे या 1000 रुपये डाले थे, अगर वो 1100 रुपये हो गए हैं तो वो क्यों हुए हैं, तब आप उसको थोड़ा उसको ट्रैक करेंगे तो समझ में आएगा। ये मैं अपने साथ करता हूँ कि जब भी मुझे कुछ नया समझना होता है ना, एक्सपेरिमेंट की तरह रन करते हैं, डू एन एक्सपेरिमेंट एंड गिव इट अ ट्राई, अंडरस्टैंड। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी किसी की ना, ये टाइम बाउंड नहीं होती कि ओके आई विल जस्ट इन्वेस्ट, आई एम इन्वेस्टर ओनली फॉर 1 ईयर और 10 ईयर, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 साल के अंदर ही सब कुछ सीखना है या समझना है, 6 महीने के अंदर सब कुछ समझना है। तो यू हैव टू गिव योर ओन टाइम। आप छोटा ट्राई करिए, अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, आपको समझ आने लगेगा कि चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, उसकी वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन हो रही है, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है। तो आई थिंक अगर आप इतना ट्राई करेंगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बन जाएगी इसके बारे में। Will I be wrong if I say crypto का learning का journey is slightly steeper compared to other asset classes? अभी जाके it has become fairly democratized, ऐसा है अभी कि is it still slightly difficult to understand? मुझे लगता है कि अभी काफ़ी हद तक डेमोक्रेटाइज हो गया है, बिकॉज पहले तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे, तो आपको कुछ ही ऑप्शन थे जहाँ पे जाके आपको सब पढ़ना था, समझना था, और वो जो रिसोर्सेज थे फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ नॉट इन टेक्नोलॉजी, उनको समझ में आने के लिए बहुत मुश्किल था। एक ऑप्शन ये था, पहले के ज़माने में जो प्लेटफॉर्म भी थे, वो प्लेटफॉर्म भी इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं थे, देवर मोस्टली ट्रेडर फोकस कि आपको ग्राफ देखना है, चार्ट देखना है, तब जाके इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। आई थिंक दोनों फ्रंट पे काम हुआ है। आज के टाइम पे आपको अगर देखा जाए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज, एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है जिसको आप कंज्यूम करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा, अब आज के दिन में प्लेटफॉर्म्स ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ पे इजीली आप इन्वेस्ट करके सीख सकते हैं। आपको हाई लर्निंग की जरूरत नहीं, आपका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लाइक कॉइनस्विच एन एग्जाम्पल, आप 100 रुपये में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब हमने कॉइनस्विच लॉन्च किया था तो हमने ये सोचा था कि यार इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर है, क्योंकि उसको बैकग्राउंड तो है नहीं इन्वेस्टमेंट का, और क्रिप्टो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो क्या करता है। तो हमने, जिसको कुछ नहीं आता है ना टेक्नोलॉजी के बारे में या ऐप के बारे में, क्योंकि पहले तो, अब तो सब लोग सीख गए हैं, उस समय तो ऐप चलाना भी लोग बहुत कम ही लोग कर पाते थे। तो हम ये था कि यार जो कुछ नहीं करता है ना, वो भी खाना स्विगी पे ऑर्डर कर सकता है इजीली। तो हमने स्विगी को बेंचमार्क बनाया और कॉइनस्विच को डिजाइन किया। यहाँ पे आप सिंगल क्लिक पे बाई कर सकते हो, सिंगल क्लिक पे सेल कर सकते हैं। मैं इस कॉन्वर्सेशन में ना प्रोफेशनल पर्सनल में स्विच करता रहूंगा। श्योर। तो हमने स्टार्ट किया आपके पर्सनल से, अभी हम गए प्रोफेशनल पे, मैं वापस थोड़ा सा पर्सनल पे आ जाऊंगा। एक्चुअली दोनों के बारे में सवाल है। ऑन योर बिजनेस साइड, फॉर योर कंपनीज, देयर इज अ लॉट एट स्टेक, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विद यू, देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्स दैट यू हैव सेट कि ये करना है, इस तरह से करना है, all of it, like so many people who are dependent. You would take, say, X amount of risk
इतना रिस्क ले लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है. हाउ डज दैट वर्क इन द पर्सनल स्पेस? आर यू एबल टू टेक द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क in your personal space also, or are you more conservative in your personal space because of the upbringing कि भाई जो है उसको ठीक तरह से रखो, संभाल के रखो, सजा के रखो? How does that work? How does the risk, is it the same risk that you're taking in both sides, or is it different? Yeah, let me clarify. I think in case of company, I'm pretty conservative. So even there, because that is fair not enough. my money. There somebody has trusted, like investors have trusted and they have put on their money. So we always take data driven decisions. ऐसा नहीं होता कि what I feel I should do that. अपनी wishful thinking पे तो नहीं चलेगा. And also from the user perspective as well, they are trusting us as one of the top platform in India where they can do their crypto investment as well. तो हमें उसको भी ऑनर करना है यार, उनके लिए भी फेयर करना है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनके लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पे थिंग्स कैन गो हेयर, तो वो हमें हम उनको ध्यान में रख के करते हैं. हाँ, पर्सनल लेवल आई थिंक माई रिस्क एपेटाइट हैज इंक्रीज नाउ. आई कैन टेक मोर रिस्क आई बिलीव. और मुझे लगता है कि यार रिस्क लेने से ही ना यू कैन गेट मोर बेनिफिट, लाइक एसिमेट्रिक रिटर्न यू कैन गेट बाय टेकिंग रिस्क. अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होते हैं. यस. अभी अगर हम सोचें कि पर्सनल लेवल पे, what are the few things that one should look for when it comes to say financial security that you think are essential, are important, which give you a peace of mind? For example, I can start with like something like an emergency fund is something that you should have. कि आपके प्रोफेशनल में जो भी चले, but at least आपका घर का खर्चा चलाने के लिए there should be an emergency fund. Are there any other such ideas or tools that you keep in mind? Since you talked about emergency fund, I'll just talk about one of my life experiences. So when I was in Zynga, I had Zynga company shares at that time. When I left Zynga, though I had some need as well, but I sold all those shares. After few years, those shares got multifold. ये मैं बताना चाहता हूँ कि because मेरे पास कोई इमरजेंसी कॉर्पस नहीं था वहाँ पे, मैंने कुछ ऐसा नहीं रख रखा था, तो मेरे को जब भी जरूरत पड़ी आई थॉट कि चलो जो इन्वेस्टमेंट है वही सेल कर दो. तो वो मेरे लिए एक लर्निंग है, और विच आई कैन टेल एज वेल फॉर अदर ऑल्सो हु आर वॉचिंग, कि यार एक इमरजेंसी फंड रहता है, इट गिव यू कंफर्ट इन योर डिसीजन मेकिंग. कि यार आपको अगर सेल करने का कॉल आप आज नहीं ले सकते, आप उसको डिले कर सकते हैं, आप थोड़ा वॉच कर सकते हैं. अगर आपके पास पैसा है जो आपकी लाइफ का एटलीस्ट 6 महीना सस्टेन करके चला सकता है, तो सो दिस एक्चुअली हेल्प्स, राइट. द सेकेंड थिंग आई टेल अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड डू डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है. लाइक इवन सिंस माई लाइफ इज इन क्रिप्टो, राइट नाउ इन लेमन एंड क्रिप्टो बोथ, बट वी ऑलवेज एडवाइज पीपल टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो. हम जैसे क्रिप्टो में भी हम बोलते हैं कि यार 5% से 10% तक आपको क्रिप्टो में लगाना है, बाकी सब आप ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस में डालिए. लाइक पुट इट इन स्टॉक मार्केट, पुट इट इन म्यूचुअल फंड, पुट इट इन अदर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस एज वेल. रियल एस्टेट, गोल्ड में आप डालिए. डोंट पुट एवरीथिंग अंडर वन एसेट क्लास, बिकॉज सिचुएशन लाइक दिस, अभी वॉर चल रहा है, राइट. अभी तो सब कुछ इतना वोलेटाइल है, और अब आज के दिन में केवल गोल्ड है जिसने होल्ड करके रखा है, राइट. जब क्राइसिस सिचुएशन आती है या अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, और आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन इमेजिन एट वेल, उस सिचुएशन में डाइवर्सिफिकेशन कैन रियली हेल्प यू इन प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैड सिचुएशन. इंटरेस्टिंग. अभी का आपने वॉलेटाइल सिचुएशन मेंशन किया. इवन द time 2018 when you said you were getting married and हर दिन there was वो तलवार लटक रही थी कि कब होगा. How do you protect yourself or your emotions from volatility or market ka unstable this thing? I think one thing I believe कि we should detach the money and the emotion. अगर आप ये कर पाते हैं तो शायद आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको डेली के जो स्विंग होते हैं ना मार्केट में स्विंग हो सकते हैं, एंड एवरी मार्केट गोज थ्रू अ साइकिल. इवन यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, उसमें भी साइकिल होती है. क्रिप्टो के एटलीस्ट 4 साइकिल तो मैंने देखी 2018 से लेके अभी तक. तो हर बार एक ऑल टाइम हाई आता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद वो ऑल टाइम हाई को बीट करके फिर से नया ऑल टाइम हाई लेता है. हर 2 साल में डेड हो जाता है. यस. तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको इमोशन से डिटैच करके रखेंगे तो शायद आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी.
एक चीज़ ये है, और दूसरा ये है कि इफ़ यू आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन योर इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि कभी फोमो में बाय नहीं करना है. फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार बढ़ रहा है, कल के दिन क्या पता मैं नहीं खरीदूँ डबल हो जाए, ये वाले में आपको बाय नहीं करना है. और अगर आप टाइम पे सेल कर पाते हैं किसी चीज़ को, जैसे कई बार क्या होता है कि हमने चलो एक अच्छी एडवाइस मिली, इन्वेस्ट कर लिया और वो मार्केट बढ़ने लग गया. एडवाइस में ये भी होता है कि आपको कब सेल करना है, कब एग्जिट करना है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं. वहाँ पे वी गेट अटैच टू इट कि नहीं, आई थिंक बढ़ रहा है तो शायद हो सकता है और जाए, और फिर वो गिर जाता है. तो आई थिंक इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर इन्वेस्टमेंट, देन ऑल्सो दिस विल हेल्प you in maintaining your emotion and your investment both. Next bit is again, since we are tracking from you starting out to now, of course your lifestyle would have improved, or it would have changed, and things have definitely moved. Like, how much of a change has happened in terms of your lifestyle inflation, and how do you keep that in mind? Do you look back and like, is this something that I need, or is this something that I want? Is that a thing that you deal with? No, I think it comes from your upbringing. The kind of upbringing I had, it taught me that okay, first differentiate what is your need and what do you want. I always believe in a simple lifestyle, and I don't go for what is available. I always look for what I need, basically for my immediate need. So hard work and dedication is important. How big a role does timing play, being at the right place at the right time with the right people? I think it plays a very important role, and I can give you from my own experiences. Please. I'll give you two examples. First example is like having a company of Ashish and Govind, my friends, my co-founders. हम same batch में pass out किए 2011. Same batch, same college. Not same college. Ashish and Govind are in different college. I was in a different college, but we met through a common friend, and after that we were kept meeting. अगर मान लो अगर 2 साल भी different होता, अगर किसी का भी अगर 2 साल पहले या बाद में होता तो शायद हम नहीं मिल पाते. Then this would have not been happen in a different way. एक ये था. दूसरा, when we started CoinSwitch, it was like very early for Bitcoin, very early for like लोगों को पता भी नहीं था, right? So आपको एक early mover advantage मिलता है. जब हमने start किया उस समय डिमांड बढ़ रही थी, लोगों को अवेयरनेस आ रही थी, राइट? मतलब अगर आप आज क्रिप्टो में कोई कंपनी स्टार्ट करे, मैं ये नहीं कहता हूँ स्केल नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली उतना हो सकता है, बट आपको एफर्ट और भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. मार्केट काफ़ी बन चुका है, चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं, तो ऑब्वियसली टाइमिंग डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क. Great. Abhi, we will just, since the show is called Best Interest, we will ask you some really quick questions. Okay. You have to tell us if what of the two options is in the audience's best interest. For example, is it in your best interest to go for a high risk, high return, or steady compounding? I think both. Interesting. For a matured investment portfolio, you need both. In your best interest, timing the market or time in the market? I don't think anybody can time the market. So time in the market would I go with, because time in the market, like how long you are sustaining in the market. Compounding is a great example. Yeah. Right? If you are investing systematically, then through compounding you can create good wealth. What is in your best interest? Taking financial advice or self-learning? I think self-learning. This is what I have done throughout my life. What is in your best interest? Optimizing or enjoying the money? I think optimizing. Interesting. Yeah. One final thing. What is the one thing that people, Indians, think is in their best interest but is actually not, especially when it comes to finance and money? I have seen people taking loan and investing. I believe that that is not the right thing. They should not do. So you take a loan and you start investing in different and hoping that the returns there will... Yes. Okay. Yeah, it will be much higher than what interest they are paying. And there also they want to time the market. They would have received some advice, okay, invest this money in 1 month, it will be double. And nowadays people are investing something like crazily. I believe that investment is a long journey. Sometimes you have always ups and downs also you will see along with the market. You should not take a loan and invest. On that note, all the people who invest through the tools that you created, be it through crypto or be it through the regular ones, are there any
sort of types of Indian investors according to you? Because you have seen investors of all shapes, kinds from all parts of the country. Are there any types of Indian investors that you keep seeing and maybe you want to warn people against? For example, this was one idea that it does not make sense to take a loan and start investing because, I mean, you can't time the market, right? As you said. Is there anything else that you've seen in your experience speaking to customers and seeing how they interact with your services? I think one thing also I have observed that many people invest when market started going up. They should do when market is down. Yeah. So this is a major observation. I have seen most of the people do that. Okay, जब मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, जब न्यूज़ आनी शुरू होती है, अच्छा निफ्टी इतना बढ़ गया या बिटकॉइन इतना हो गया, तब जाके लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं. और जब मार्केट गिरता रहता है, देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर साइलेंट, दूर ही हट जाते हैं. यस मुझे लगता है कि इसका उल्टा होना चाहिए. और यहाँ पे ऑब्वियसली लर्निंग, फाइनेंशियल लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है. मे बी शायद वो किसी पीयर्स के एडवाइस पे करते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के एडवाइस पे करते हैं. तो मुझे लगता है कि यहीं पे सेल्फ लर्निंग का रोल आता है कि अगर आप सीख के करेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन को ऑब्जर्व करके करेंगे, थोड़ा सा मार्केट साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप ऐसे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे. And I really liked how you put it across that, you know, we just invest with that FOMO and greed and emotion, say. But thank you so much for showing us a light on how things actually work and how you look at money, how you understand finance, and how you practice it in your life, in your personal life, and in your professional life. Well, thank you so much for joining us. And that was an insightful conversation. I think what really stood out is how money is as much as about managing risk as it is about managing the emotion and also about exploring the opportunities. If you enjoy this conversation, make sure you stay tuned. We will be bringing you many more such real stories and perspectives around money right here on Best Interest. This is me, Aditya, signing out.